Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mubin Nas. I'm from MK Preparations, and today we're going to discuss about endocrine glands of mammals. So, dear students and candidates, this topic is very much important as well as it is too much interesting. So, students जो हैं वो इसको different exams के लिए exams की preparation के लिए इस topic को prepare कर सकते हैं. For example, for the MDCAT, for the NUS test, and any test related to the admissions in universities. Okay. So candidates जो हैं they can prepare this topic for the preparation of different competitive exams like Punjab Public Service Commission PPSC and Sindh Public Service Commission SPSC, Federal Public Service Commission FPSC and Balochistan Public Service Commission BPSC. So this topic is very much important और इसमें जितना भी मटेरियल कोड किया गया है it has been taken from the different source books which includes the FSC Biology, Federal Biology, Zoology Miller and Harley book, as well as Eckert Animal Physiology and Guyton and Hall Medical Physiology. So the contents that we are going to discuss includes the chemical messengers. After that, it includes the location of glands, nature of the hormones, hormonal synthesis, storage and secretion, regulation of hormone secretion, mechanism of action of hormones, hypothalamus and the pituitary gland, thyroid gland, parathyroid glands, pancreas, adrenal gland, ovary, testis, and placental hormones. And then at the end, we'll discuss about the kidney, heart, and pineal gland hormones. ओके जी, सो अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं इस टॉपिक को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट आर केमिकल मैसेंजर्स. सो डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं हमारे पास सेल्स की, टिश्यूज की या ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी की, these activities are coordinated by the different types of the chemical messengers, and now we are going to discuss about the different types of the chemical messengers. The first one are the neurotransmitters. ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं जी? ये वो केमिकल्स हैं जो कि न्यूरॉन एंडिंग से रिलीज होते हैं, यानी न्यूरॉन्स का जो एक्सोनल पार्ट होता है, एक्सोनल टर्मिनल है, वहां से रिलीज होते हैं एट द साइनेप्टिक जंक्शंस, एंड देन ये नेक्स्ट टारगेट सेल के ऊपर अटैक करते हैं टू कंट्रोल द नर्व सेल फंक्शंस. ठीक है, देन है हमारे पास एंडोक्राइन हार्मोन्स. दीज आर रिलीज्ड बाय द ग्लैंड्स और द स्पेशलाइज्ड सेल्स इनटू द ब्लड. ये डायरेक्टली ग्लैंड्स के जो सेल्स होते हैं उनसे ब्लड में सिक्रीट किए जाते हैं एंड देन ब्लड में ट्रेवल करते हुए स्पेसिफिक टारगेट टिश्यूज तक जो कि बॉडी के किसी भी रीजन में लोकेटेड हो वहां तक पहुंचते हैं. ठीक है, देन है न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स. तो न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स भी बेसिकली न्यूरॉन्स ही सिक्रीट करते हैं इनटू द ब्लड, and they will have functions at another location in the body. Okay, then the paracrines. Paracrines so hai, these are the chemicals that are released by one cell and their effect is on the neighboring cell of a different type. Autocrines जो हैं ये वो chemicals हैं that are released by the one cell and they are going to have effect on the same cells, okay, that are going to produce them. देन है जी साइटोकाइंस. साइटोकाइंस जो हैं दीज आर पेप्टाइड्स और इनको सिक्रीट किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. ये ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन हार्मोन के तौर पे ही फंक्शन करते हैं. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं साइटोकाइंस की दैट इंक्लूड द इंटरल्यूकिन्स एंड लिम्फोकाइंस. इनको हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स, ये रिलीज करते हैं. ठीक है, ताकि ये बाकी इम्यून सिस्टम के सेल्स पे अटैक कर सकें, उनको स्टिमुलेट कर सकें फॉर वर्किंग अगेंस्ट द पैथोजेंस. देन हमारे पास साइटोकाइन हार्मोन्स हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एडिपोसाइट्स. इनको एडिपोकाइंस कहा जाता है. ठीक है, ओके जी. नाउ
we need to differentiate between the different terms. First of all, what are true hormones? True hormones जो हैं, these are secreted into the blood by the endocrine glands. For example, the thyroxine, the epinephrine, testosterone, estradiol and insulin. ये सभी जो हैं ये true hormones हैं that are released by the endocrine glands. After that, there are neurohormones. तो neurohormones जो हैं ये nerve cells secrete करते हैं एंड ये नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे ब्रेन का पार्ट है और ये ग्लैंड के तौर पे वर्क करता है, ये डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल द एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड द ऑक्सीटोसिन। देन द फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या है? ये एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं, दीज आर नॉट एंडोक्राइंस। जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें ये फंक्शन होता है, उनमें ये डिफरेंस होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो विदाउट डक्ट्स रिलीज कर रहे होते हैं डायरेक्टली ब्लड में, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो विद डक्ट्स अपनी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। तो फेरोमोन्स भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही रिलीज करते हैं और इन फेरोमोन्स का इफेक्ट किसके ऊपर होता है? एक दूसरे एनिमल के ऊपर, ठीक है। स्पेसिफिकली सेक्स फेरोमोन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स एंड दे आर यूज्ड बाय दीज एनिमल्स टू मार्क देयर टेरिटरीज। यानी अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए ये अपने टेरिटोरियल बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए ये इन फेरोमोन्स को यूज करते हैं, ठीक है। एंड next are the interferons. So these are the proteins that are released by the immune system cells in response to viral infection. Okay, बॉडी पे अगर कोई वायरस अटैक कर दे तो फिर हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं दे आर गोइंग टू रिलीज द इंटरफेरॉन्स एंड they stimulate the release of the antiviral proteins that act to destroy the viruses. ये हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं इंटरफेरॉन्स कि वो एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करें ताकि वायरसेस को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय किया जा सके, ठीक है। Now, prostaglandins, these are fatty acid based chemicals that are made in most of the tissues of the body and they have a diverse range of actions including the inflammation, fever and development of pain, ठीक है। यानी ये inflammation के अंदर बहुत important role perform करते हैं और many of the functions are associated with the control of the smooth muscle cells in the blood vessels, medication that reduces the swelling and inflammation, इट वर्क्स अगेंस्ट दी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्फ्लेमेशन में। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी में जो है वो कोई इन्फेक्शन हो, बॉडी में पैथोजेंस की एंट्री हो तो, या कोई आप कह लें कि बाय एक्सीडेंट कोई वाउंड वगैरह हो जाए बॉडी के ऊपर, तो उस केस में वो जो वाउंड वाला रीजन होता है इट्स गोइंग टू स्वेल एंड वो रेडिश एरिया हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, फिर वहाँ पे पेन फील होती है जस्ट बिकॉज कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो और पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क करे टू डिस्ट्रॉय देम। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगर नहीं होंगे तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा, ठीक है, और इम्यून सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता फिर उस केस में अगेंस्ट दी पैथोजेंस। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लोकेशन ऑफ ग्लैंड्स। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो डायग्राम में हम देख सकते हैं फर्स्ट वन है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस एंड एज यू कैन सी हियर ये हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पार्ट, और उसके बिल्कुल नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है। देन है जी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जो है वो दो लोब्स होते हैं, लेटरल लोब्स, और ये ट्रैकिया के साथ अटैच हैं। एज यू कैन सी हियर दिस वन इज ट्रैकिया, तो ट्रैकिया के साथ अटैच हैं। देन पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं ये 4 पार्ट्स होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के एंड 2 पार्ट्स आर एम्बेडेड इन ईच ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। ओके, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये हमारे पास वन पेयर होता है एड्रिनल ग्लैंड्स का जो कि टॉप ऑफ द किडनी, एज यू कैन सी हियर द लाइट ब्लू कलर टॉप ऑफ द किडनी पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका जो आउटर पार्ट है इट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज नोन एज द मेडुला। फिर है जी हमारे पास पैंक्रियाज। सो वेयर इज पैंक्रियाज एक्चुअली लोकेटेड? इट इज लोकेटेड ऑन द लोअर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। तो स्टमक की जो है वो बिल्कुल बैक साइड पे और लोअर साइड पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट इज जस्ट क्लोज टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज duodenum to secrete or to release its secretions in the form of pancreatic duct to the duodenum. Now the gonads. Gonads are found in the pelvic cavity as you can see here, ठीक है, testis or the ovaries. Now we'll discuss about the nature of hormones. So जो हमारे पास hormones हैं they are divided into the 3 classes based on their structure. कुछ जो hormones हैं वो peptides हैं,
एंड कुछ हार्मोन्स अमाइंस इन नेचर है, यानी अमाइनो एसिड्स हैं. पेप्टाइड्स मींस दे आर हैविंग शॉर्ट चेन्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स. और स्टीरॉइड्स हैं, यानी स्पेसिफिकली दे आर मेड अप ऑफ द कोलेस्ट्रोल. अमाइंस को अगर हम देखें तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं, एड्रिनल मेडुला और पीनियल ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं, दे आर अमाइंस इन नेचर. एंड स्टीरॉइड्स जो हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनेड्स के जितने भी हार्मोन्स हैं, दे आर ऑल स्टीरॉइड्स. Now, one by one, we'll discuss about the each category. So, steroids. Steroids are the lipids derived from the cholesterol. ठीक है. Steroid वो हार्मोन्स होते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल से डिराइव किया गया है. And then they are secreted by the gonads, adrenal cortex and placenta. तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो कि स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं. As you can see here, the examples of some steroid hormones. The sex steroids, the glucocorticoids and the mineralocorticoids. Okay, sex steroids पे प्रोजेस्टेरोन है, glucocorticoids में corticosterone है and mineralocorticoid में aldosterone है. So all of these are the steroid hormones, as well as the androstenedione, testosterone, estradiol. All of these are the steroid hormones. Now the peptides and the amines. तो अगर हम इन हार्मोन्स को देखें तो they are composed of short chains of the amino acids. Okay, इसमें कौन से ग्लैंड्स की सिक्रीशंस इन्वॉल्व हैं? द पिट्यूटरी ग्लैंड, द पैराथायरॉयड ग्लैंड, द हार्ट, स्टमक, लिवर एंड द किडनीज. तो इन सब के जो हार्मोन्स हैं, दे आर पेप्टाइड्स एंड अमाइंस इन नेचर. So amines are derived from the amino acid tyrosine and are secreted from the thyroid and the adrenal medulla. ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड से ये एक्चुअली बने होते हैं एंड थायराइड और एड्रिनल मेडुला स्पेसिफिकली इन हार्मोन्स को सिक्रिएट करते हैं. And solubility of various hormone classes varies. Now the hormonal synthesis, their storage and secretion. तो अगर हम डिस्कस करें पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस को, सो दे आर सिंथेसाइज्ड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वी कैन सी हियर. और यहाँ पे सिंथेसाइज होने के बाद इनिशियली यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लार्जर प्रोटीन्स दैट आर द प्री प्रो हार्मोन्स. ठीक है, इनिशियली प्री प्रो हार्मोन्स की फॉर्म में सिंथेसाइज होंगे, देन इनकी क्लीवेज होती है, इनकी ब्रेकडाउन होती है और ये फाइनल प्रो हार्मोन्स की फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. आफ्टर दैट इनको वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द गोल्जी apparatus फॉर देयर पैकेजिंग एंड फॉर देयर मॉडिफिकेशन. After modification, they are going to packed in the form of secretory vesicles. Okay, so secretory vesicles जो हैं, now they are going to be released out of the cell. तो अब हम देखते हैं कि इनको कैसे जो है वो रिलीज आउट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, तो ये जो वेसिकल्स हैं, दे आर गोइंग टू फ्यूज विद द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस they are going to be released out of the cell. So in many cases, the stimulus for the exocytosis is an increase in the cytosolic calcium. यानी इन के लिए जो स्टिमुलस है इनकी एक्सोसाइटोसिस के लिए वो है ये कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका calcium is going to be increased. Okay, and the increased calcium will cause the increased cyclic AMP synthesis and then activation of protein kinase that initiate the secretion of hormone. Increased calcium will lead to increased amount of the cyclic AMP, which will increase the activation of protein kinases for the release or for the exocytosis of these molecules. Now steroid hormones, they are synthesized from the cholesterol. Okay, so steroid hormones जो हैं मोस्टली इनका स्ट्रक्चर भी जस्ट सिमिलर टू द कोलेस्ट्रोल ही होता है क्योंकि उसी से ही इनकी सिंथेसिस होती है. एंड दे आर लिपिड सॉल्युबल एंड दे कंसिस्ट ऑफ द 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग्स. 3 इसमें साइक्लोहेक्साइल रिंग्स होती हैं और जो एक है वो है साइक्लोपेंटाइल रिंग, जस्ट लाइक द कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल. तो ये तमाम जो हैं ये स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं. एंड यू कैन सी हियर ऑल ऑफ and these are having similar structures that are much related to the cholesterol. So much of the cholesterol in the steroid producing cells comes from the plasma, but there is also de novo synthesis of cholesterol in steroid producing cells. ठीक है, तो जितने भी steroid hormone producing cells होते हैं इनको cholesterol कहाँ से मिलता है?
इट कम्स फ्रॉम दी प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा से बेसिकली कोलेस्ट्रॉल आ रहा होता है, देन इस कोलेस्ट्रॉल को मॉडिफाई करके कन्वर्ट किया जा रहा होता है डिफरेंट टाइप्स के स्टेरॉइड हार्मोन्स में, amine hormones and their derivation. So, amine hormones are specifically grouped. There are two groups of the hormones derived from the tyrosine, the thyroid and the adrenal medulla. क्योंकि यही hormones जो thyroid और adrenal medulla के hormones हैं, they are actually amine hormones. और इनको किस amino acid से derive किया गया है? That is tyrosine hormone, tyrosine amino acid. Okay. Now, thyroid hormones are synthesized and stored in the thyroid gland and incorporated into the macromolecules of the protein, that is thyroglobulin. Okay. So, thyroid gland में ही thyroglobulin proteins होती हैं, जिनमें के टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनने वाले इन इमाइन हार्मोन्स को स्टोर कर दिया जाता है. ओके. So hormone secretion occurs when the amines are separate from the thyroglobulin. तो thyroglobulin से ये कब रिलीज होंगे? जब इनकी सप्लिटिंग होगी, जब amines की सप्लिटिंग होगी, जब ये फ्री होंगे, then they are going to be released into the blood. Okay जी. So next is the regulation of the hormone secretion. So regulation of hormone secretion by the negative feedback and by the positive feedback. तो पहले हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेटाबॉलिज्म या एक रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो प्रोडक्ट ही बैकवर्ड जाके अपने रिलीज को इनहिबिट करवा रहा होता है. सो दैट इज नोन एज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ओके. So increasing concentration of the hormone in response to the hormone by the target tissue has inhibitory effect on either the synthesis or release of the same hormone. यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी दी गई है. हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, that is going to attack on the anterior pituitary so that it can release the tropic hormone, that is thyroid stimulating hormone. Now this hormone will attack on thyroid gland to increase the synthesis of the thyroxine. Now, in response to thyroxine, when thyroxine is going to have its effect on the growth and when maximum growth is achieved, now this thyroxine is going back to inhibit its release by acting on the hypothalamus to inhibit the secretion of thyroid releasing hormone. Okay. तो एक प्रोडक्ट जो है फाइनली इस सीरीज के रिजल्ट में जो एक हार्मोन बन रहा है, इट्स गोइंग back to inhibited secretion. So, the short loop feedback and the long loop feedback. So, in case of short loop feedback, the concentration of the hormone is going to act directly back on the endocrine tissue to reduce its secretion. But in case of long loop feedback, it operates on the same principle, but it includes more elements in series. Okay, means इस loop की बात हो रही है कि शॉर्ट लूप फीडबैक में डायरेक्टली जो है वो अपने से प्रीवियस स्टेप को इनहिबिट कर रहा होता है एक प्रोडक्ट, और लॉन्ग लूप में जो ये प्रोडक्ट है ये पीछे हर एक लॉन्ग सीरीज होगी, ठीक है, स्टिमुलेशन की, तो बिल्कुल फर्स्ट वाला जो स्टेप होगा उसको जाके इनहिबिट करेगा. नाउ यू कैन सी हियर व्हेन एन एक्सट्रीमली रैपिड रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड. ये अब हम पॉजिटिव फीडबैक को डिस्कस करेंगे कि जब हमें एक चीज है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर होती है, हार्मोन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टिमुलेशन हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं. सो इन केस ऑफ एक्सट्रीमली रैपिड रिस्पॉन्स, the secretion of the hormone leads directly or indirectly to increase its secretion. Okay. So positive feedback occurs early in the reproductive cycles when responses must peak relatively quickly. तो specifically ये responses जो हैं ये vertebrates के reproductive cycles में होते हैं, ठीक है, like increasing the level of the luteinizing hormone, यानी एक specific function जिसका require हो तो उसी के लिहाज से जो है वो उसकी synthesis हो रही होती है. Now, as you can see here, there is a regulation of the sex hormones. The hypothalamus is going to release the gonadotropin releasing hormones that will attack on the anterior pituitary to cause the release of FSH and LH that are going to attack on the gonads like the testes and the ovaries. And then it will lead to the release of the sex steroid hormones of the males and females. And after that, when the concentration of these steroid hormones is going to increase, these steroid hormones are going to
inhibit the hypothalamus or inhibit the anterior pituitary secretions to stop their release. नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल और पॉजिटिव फीडबैक की एक स्केच है हमारे पास कि जब जो है वो एक हार्मोन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, टारगेट टिश्यू पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी. जब प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगी, नाउ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग बैक टू इनहिबिट द ग्लैंड टू रिलीज इट्स हार्मोन. पॉजिटिव फीडबैक में क्या है कि एक हार्मोन रिलीज होगा, टारगेट टिश्यू पे अटैक करेगा एंड इट्स प्रोडक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज. नाउ दिस इंक्रीज्ड प्रोडक्ट is moving back to stimulate the gland to further increase its secretion. Okay. Now, mechanism of action of hormones. So, hormone receptors and their activation. First step of the hormone's action is to bind with the specific receptors at the target cell. So, cells that lack the receptors for the hormones, they are not going to respond. And the receptors are located on the cell membranes of the target cells in the nucleus or in the cytoplasm. Okay. And each receptor is highly specific for the single type of the hormone. So यहाँ पे हमें बताया गया है कि हार्मोन्स जो हैं व्हेन दे गोइंग टू बी रिलीज्ड इन द ब्लड, तो अपने टारगेट सेल पे जाके अटैक करेंगे. किस जगह पे अटैक करते हैं ये, ठीक है. तो स्पेसिफिकली पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हर तरह का जो हार्मोन होता है वो स्पेसिफिक टाइप्स के सेल्स पे अटैक करता है, क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइप के सेल के पास उस हार्मोन को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर मौजूद होता है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होता है. So there are different types of the hormone receptors that are present on the in or on the surface of the cell membrane, that are present in the cytoplasm or that are present in the nucleus. तो ये तीन different locations हैं हमारे पास cells की जहाँ पे एक specific hormone का receptor present हो सकता है, ठीक है. Now we are moving to study the details of the endocrine glands. So first of all है जी हमारे पास हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो प्राइमरी एंडोक्राइन ऑर्गन्स क्या हैं हमारे पास? हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, दे आर गोइंग टू रिलीज द हार्मोन्स एंड दे आर द मेन रेगुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन इज द हाइपोथैलेमस, दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड दिस हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बेस ऑफ द ब्रेन, लाइक यू कैन सी हियर एट द बेस ऑफ द ब्रेन ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है. और ये दोनों जो हैं ये प्राइमरी एंडोक्राइन ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के तौर पे वर्क करते हैं. इन दोनों से रिलीज होने वाली सिक्रीशंस ही थ्रू आउट द बॉडी जितने भी ग्लैंड्स हैं मोस्टली ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करती हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द प्राइमरी एंडोक्राइन ऑर्गन्स और ग्लैंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी से क्या रिलेशनशिप है. Now you need to focus on this topic because this is very much important. The relationship of hypothalamus to the pituitary gland. फिर hypothalamus से कौन सी secretions release होंगी, pituitary से कौन सी type की secretions release होंगी. Okay. So first of all, where is hypothalamus located? This is located below the thymus and above the pituitary gland. Okay. Pituitary gland is also known as the epiphysis. तो जो हमारे पास hypothalamus है दैट इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस. थैलेमस जो है वो ब्रेन का पार्ट होता है और उसके बिल्कुल नीचे ही हाइपोथैलेमस लोकेटेड है, ठीक है. एंड अबव द, यू कैन सी हियर, अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड, regulates the pituitary gland secretions by the two different mechanisms. तो जो hypothalamus है वो pituitary gland की secretions को दो तरीकों से कंट्रोल करता है. या तो वो pituitary gland की secretions को यानी रिलीज करवाने के लिए रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, या हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को इनहिबिट करवाने के लिए इनहिबिटरी सिक्रीशंस रिलीज करेगा, ठीक है. ओके जी. नाउ हाइपोथैलेमस न्यूरोहाइपोफिसिस, यानी हाइपोथैलेमस का न्यूरोहाइपोफिसिस हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी का, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं. इसको हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे. तो न्यूरोहाइपोफिसिस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पोस्टीरियर लोब है, ठीक है. तो हाइपोथैलेमस का इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब यानी न्यूरोहाइपोफिसिस से क्या रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं. So neurons receiving information from the receptors fire the action potential which travel down to the posterior lobe of pituitary and stimulate the release of the stored hormones that are oxytocin and antidiuretic hormone.
तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे कि जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, एज यू कैन सी हियर, दिस वन इज द हाइपोथैलेमस हैविंग द न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। मीन्स ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कोई ना कोई सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो कौन सी सिक्रीशंस हैं? वो है जी एंटी डायरेटिक हार्मोन और एक है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, इनका एक्सोनल टर्मिनल जो है वो न्यूरो हाइपोफिसिस तक है। ठीक है, और इनके एक्सोनल टर्मिनल्स में ये हार्मोन्स स्टोर हो जाते हैं इन द न्यूरो हाइपोफिसिस। और जब स्टिमुलस आता है एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, तो जो न्यूरो हाइपोफिसिस है उसमें जो हाइपोथैलेमस के न्यूरोनल एक्सोनल एंड्स प्रेजेंट हैं, ये इन हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं। ना हाइपोथैलेमस रिलेशनशिप टू एडिनोहाइपोफिसिस। एडिनोहाइपोफिसिस जो है ये एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, तो अब जब स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो सिक्रीटरी सेल्स लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस सिक्रीट द रिलीजिंग हार्मोन। अब इस केस में जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है उसके हार्मोन्स डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होते एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। इनका रिलेशनशिप की यहीं पे ही हाइपोथैलेमस में ही टर्मिनेट हो जाते हैं, एंड अपने जो भी सिक्रीशंस होंगी, जो भी रिलीजिंग हार्मोन्स होंगे, उनको रिलीज कर देंगे ब्लड में। ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ये हार्मोन्स ट्रेवल करके आएंगे एडिनो हाइपोफिसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी तक। ठीक है, और अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अपने ट्रॉपिक नेचर के हार्मोन्स को रिलीज करेगा यहाँ से। ओके, नाउ हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन। यानी हाइपोथैलेमस के दो टाइप्स के हार्मोन्स हैं, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, और ये दोनों टाइप्स के हार्मोन्स जो हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो ये कौन से हार्मोन्स हैं? दीज आर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स विच कॉज द रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा TRH, ये रिलीजिंग हार्मोन है, और ये जब अटैक करेगा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे, तो फिर एंटीरियर जो पिट्यूटरी होगा वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। Then corticotropin releasing hormone. So it will attack on the adenohypophysis to cause the release of adrenocorticotropins. Then growth hormone releasing hormone will attack on the anterior pituitary to cause the release of the growth hormone or the somatotropin hormone. Then gonadotropin releasing hormone will attack on the anterior pituitary to cause the release of the gonadotropin hormones that are follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Then is the prolactin inhibitory hormone. So it will be released from the hypothalamus, and then it will attack on the anterior lobe of pituitary to inhibit the secretion of the prolactin. नाउ द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम रिलेशनशिप, यानी अब हम हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। सो बोथ ऑफ दीज ग्लैंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ लॉन्ग स्टॉक। ठीक है, ये एक स्टॉक है, इसकी हेल्प से दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एंड इट विल कॉज द रिलीज ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स. Hypothalamus contain the neurons that control the secretions of anterior pituitary, and there are 7 hypothalamic hormones that are going to be released into the portal system. And there are total 8 hormones that will be released from the pituitary gland in response to the 7 hypothalamic hormones. As we can see here, इसको हमने पहले भी देखा कि हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, 1 2 3. अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में है जी 4 and 5. ओके, एंड देन इज द प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन 6, और एक यहाँ पे एक और हार्मोन भी होता है, ठीक है, दैट इज द पीनियल हार्मोन. टोटल 7 हार्मोन्स जो हैं वो यहाँ पे रिलीज होते हैं. देन हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और इसका रिलेशनशिप क्या है हाइपोथैलेमस से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम हाइपोफिसिस भी कहते हैं, एंड इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.5 to 1 gram in weight, and it lies in the sella turcica, that is a bony cavity at the base of the brain. तो जो हमारे पास हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे एक बोनी कैविटी है सेला टर्किका, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइपोफिसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, एंड इट इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय द हाइपोफिजियल, यानी एक स्टॉक है जिसको हम कहते हैं हाइपोफिजियल स्टॉक. इसकी हेल्प से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं.
नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पोर्शंस। पहला क्या है हमारे पास, एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज नोन एज एडिनोहाइपोफिसिस। देन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी नोन एज न्यूरोहाइपोफिसिस। ठीक है, दिस वन इज पिंक वन इज एंटीरियर एंड ब्लू वन is posterior pituitary. Now, there is a small avascular zone between the adeno and the neurohypophysis that is known as the pars intermedia. Okay, there are 6 important peptide hormones that are secreted by the anterior pituitary. तो फर्स्ट वन है जी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी के तमाम सेल्स पे अटैक करता है टू इंक्रीज देयर मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एज यू कैन सी हियर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा जो बॉडी के डिफरेंट सेल्स पे अटैक करेगा फॉर द डिफरेंशिएशन एंड प्रोटीन फॉर्मेशन टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ईच सेल। Then है adrenocorticotropic hormone or tropin hormone. So it controls the secretion of the adrenal cortex. ठीक है, यानी जो हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है दिस वन, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे अटैक करता है और इससे डिफरेंट जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं रिलेटेड टू द ग्लूकोज एंड द प्रोटीन्स एंड द फैट्स, तो उनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, यानी इट विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। देन है जी हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन हार्मोन। ये अटैक करता है जी थायराइड ग्लैंड पे और थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस को इंक्रीज करवाएगा। देन है हमारे पास प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है इट विल अटैक ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। Then there are two separate gonadotropin hormones, the follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone. ठीक है, तो follicle stimulating hormone अटैक करता है ovaries पे for the development of follicles यानी eggs की development के लिए, और luteinizing hormone भी ovary पे अटैक करता है for the ovulation to release the ovum from the ovary. ठीक है, now there are two peptide hormones that are released by the posterior lobe of pituitary. एंटीरियर को हमने देख लिया, टोटल 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। नाउ देयर आर 2 हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पहला है हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन दैट इज आल्सो नोन एज वेजोप्रेसिन। ठीक है, अब वेजोप्रेसिन का क्या काम होता है कि हमारे पास जो किडनीज हैं, किडनीज के यूनिट्स होते हैं नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन्स में होती हैं जी हमारे पास ये नेफ्रॉन्स में हमारे पास प्रेजेंट है ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम होता है उन ट्यूब्यूल्स पे अटैक करना और वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना। ठीक है, बैक टू द ब्लड, ताकि जो हमारा ब्लड है वो लेस डाइल्यूट हो। तो इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ द वाटर एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन एंड कंट्रोल्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स। देन है जी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है it will attack on the mammary glands to increase the or to stimulate the release of the milk from the mammary glands. Okay, और as well as ये जो है ये बर्थ हार्मोन भी कहलाता है that is involved in the process of delivery of baby. Now, anterior pituitary gland contains several different cell types that synthesize and secrete these hormones. तो anterior pituitary gland में हम देखेंगे cells के नाम और उनके respective जो secretions हैं। First one है somatotropes. They're going to release the human growth hormone. Then corticotropes will release the adrenocorticotropin hormone. Thyrotropes will release thyroid stimulating hormone. Gonadotropes will release the gonadotropic hormones, the luteinizing and the follicle stimulating hormone. Lectotropes will cause the release of prolactin. Okay, so ये respective cells हैं और उनकी secretions हैं। Posterior pituitary के जो हार्मोन्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल बॉडीज इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो उसने जस्ट स्टोर किए होते हैं, एक्चुअली में ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स ही बना के उनको यहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, so the large neurons are present in the hypothalamus that are known as the magnocellular neurons. Okay, so these are the magnocellular neurons. So in neurons में ये hypothalamus के neurons हैं और as you can see here they are leading to the posterior pituitary. ये end हो रहे हैं posterior pituitary में, ये अपनी axonal endings में हार्मोन्स को बना के ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन को बना के स्टोर कर लेते हैं और स्टिमुलस के मिलने पे उनको रिलीज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, posterior pituitary gland and its relation to the hypothalamus.
सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड द न्यूरोहाइपोफिसिस, और इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पिट्यूसाइट्स, but these pituitates are not involved in the production of the hormones like the oxytocin or the antidiuretic hormones. ठीक है, ये खुद से इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, और nerve endings are the bulbous knobs that contain many secretory granules. These endings lie on the surface of the capillaries where they secrete two hormones, the antidiuretic hormone and the oxytocin. Now, there are some physiological functions of the antidiuretic hormone. So, antidiuretic hormone जो है, it's going to attack on the nephrons of the kidneys, and it's going to cause the reabsorption of water from the kidneys back to the body or back to the blood. तो इन दी एब्सेंस ऑफ एडीएच क्या होगा, जब एडीएच प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तो जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं और जो डक्ट्स होती हैं, दीज बिकम इम्परमिएबल टू वाटर, और वाटर रीअब्सॉर्ब होके बॉडी में मूव नहीं कर पाता। इस केस में जो है वो डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और एक्सट्रीमली डाइल्यूट यूरिन बॉडी से रिलीज हो रहा होता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में दोबारा भेजना शुरू कर देंगी। इन दैट केस जो यूरिन बॉडी से रिलीज होगा, इट विल बी कंसंट्रेटेड यूरिन। नाउ we are going to discuss about the thyroid gland. So thyroid metabolic hormones, first of all, the thyroid gland, where it is located, it is located just below the larynx on each side of and anterior to the trachea. ठीक है, तो you can see here ये trachea की anterior side पे और जो trachea की anterior side पे और larynx के बिल्कुल नीचे जो है वो located होता है, ठीक है। And the thyroid gland secrete two major hormones, the thyroxine and triiodothyronine. Thyroxine को T4 और triiodothyronine को T3 भी कहा जाता है respectively. Okay, so these hormones increase the metabolic rate of the body, and their secretions are going to control their secretions is controlled primarily by the thyroid stimulating hormone secreted by the anterior pituitary. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि anterior pituitary gland से एक हार्मोन रिलीज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, दैट विल अटैक ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटैक करेगा थायराइड ग्लैंड पे, सो दैट इसकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो सके। So thyroid gland also secretes the hormone that is known as the calcitonin hormone. ठीक है, तो हमारे पास तीन हार्मोन्स हैं बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, थायरोक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, तो इसकी एनाटॉमी को हम देख लेते हैं जी। थायराइड ग्लैंड में कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर फिल्ड विद द सिक्रीटरी फ्लूइड, द कोलाइट फ्लूइड। ओके, तो ये फॉलिकल्स हैं, ये सब जो हैं दीज आर फॉलिकल्स, और ये जो हमारे पास लाइट ब्लू कलर में शेड नजर आ रहा है, दिस वन इज द सब्सटेंस और द फ्लूइड दैट इज नोन एज द कोलोइड। ओके, this colloid is surrounded or lined by the cuboidal epithelial cells, और इस colloid solution में क्या होता है, थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है, लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर नोन एज दी थायरोग्लोब्यूलिन्स। बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स बनते हैं वो इन थायरोग्लोब्यूलिन्स में ही स्टोर हो रहे होते हैं। ओके, now formation and release of the thyroglobulin by the thyroid cells. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थायराइड के सेल्स हैं दे आर टिपिकल प्रोटीन सिक्रीटिंग ग्लैंडुलर सेल्स, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस, दोनों में ये हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है, एंड सिक्रीट इनटू द फॉलिकल्स अ लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड द थायरोग्लोबुलिन। तो हमारे पास इन सेल्स में पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हार्मोन्स बनेंगे, देन फिर उनकी मॉडिफिकेशन होगी गोल्जी अपरेटस में, और फिर उनको कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में पैक कर दिया जाएगा दैट आर नोन एज द थायरोग्लोबुलिन्स। ओके, और ये थायरोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होती हैं इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में। नाउ द थायराइड हार्मोन्स फॉर्म्ड विद इन द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। ओके, iodination of the tyrosine and formation of the thyroid hormones.
तो अब हम देखेंगे कि थायराइड हार्मोन्स बनते कैसे हैं एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल टायरोसिन हार्मोन है, ठीक है। तो इस टायरोसिन हार्मोन के साथ क्या होता है, एक आयोडीन अटैच होगी, दैट विल बी कन्वर्टेड टू मोनोआयोडोटायरोसिन, ओके, एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड टू दी डाई आयोडोटायरोसिन, एक और आयोडीन की अटैचमेंट से। अब क्या हो सकता है फर्दर, वन मोनो एंड वन डाई आयोडोटायरोसिन ये आपस में अटैच होंगे, एंड यू कैन सी हियर वन मोनो एंड वन डाई आयोडोटायरोसिन, ये एक दूसरे के साथ अटैच होके ट्राई आयोडोथायरोनिन बनाएंगे, T3 हार्मोन। या क्या हो सकता है जी, हमारे पास के दो डाई आयोडोटायरोसिन आपस में अटैच होके, टू डाई आयोडोटायरोसिन आपस में अटैच होके T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। तो इसी की डिटेल्स यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। नाउ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, तो दीज आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, यानी ये जीन्स को जो है वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, and they increase the active transport of ions through these cell membranes, okay, activate the nuclear receptors of the genes, ताकि जीन्स के ऊपर जो जीन्स के न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, न्यूक्लियस के ऊपर जो जीन्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो एक्टिवेट हो सकें फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, okay. They increase the number and activity of mitochondria, as we know that by increasing the number of mitochondria means we're talking about increasing the production of ATP, ठीक है। तो सेलुलर फंक्शंस को अगर ATP प्रोवाइड करनी है, थायराइड हार्मोन्स जो हैं इसका मतलब ये हुआ कि थायराइड हार्मोन्स हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इनकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होंगे और इसकी वजह से ATP इंक्रीज होगी। अगर मैक्सिमम ATP है तो मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। Then they're going to increase the cellular metabolic activity, and it will increase the rate of protein synthesis, and means transcription में भी involve है और translation में भी। Now protein synthesis increase करने का मतलब ये है कि growth rate को increase कर रहे हैं, and mental processes are excited in the presence of thyroid hormones। तो इसमें ये होता है कि it will promote the growth and development of the brain, and hormone is essential for the metamorphic changes of the tadpole into frog, यानी ये tadpole larva जो है उसको frog में उसकी shape change में भी involve होते हैं, ठीक है, frog में convert करने में involve होते हैं, and they are going to increase the growth of the children's। now अब हम देखते हैं कि हमने जनरली देख लिया थायराइड हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, जीन्स यानी रेगुलेट हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं, मेटामॉर्फोसिस हो रही है, शेप चेंज हो रही है। सो ऑल ऑफ द फंक्शंस आर रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब अगर थायराइड हार्मोन्स कम रिलीज हो या ज्यादा रिलीज हो, यानी इनकी हाइपर सिक्रीशन हो या हाइपो सिक्रीशन हो, तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनकी सिक्रीशन, थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन हाइपो हो यानी कम रिलीज हो रहे हो, तो डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो पर्सन्स की रिटार्ड हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। और इससे क्या होगा, if the fetus does not secrete the maximum quantity of the thyroid hormone, तो उसकी ग्रोथ और मैचुरेशन नहीं होगी। और अगर बच्चों में ये कम रिलीज हो, फीटस में ये हार्मोन कम रिलीज हो, तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो साइज में भी छोटे रह जाते हैं, ठीक है, और टॉलर नहीं होते, लंबे नहीं होते, साइज में छोटे रह जाते हैं, इसकी वजह से एज वेल एज मेंटली भी एबनॉर्मल है, क्योंकि ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। एंड विदाउट अ थायराइड ग्लैंड विल रिमेन मेंटली डेफिशिएंट थ्रू आउट द लाइफ, यानी अगर एक पर्सन में थायराइड ग्लैंड है ही नहीं तो मेंटली वो पर्सन जो है वो डेफिशिएंट होगा। अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाती है, सो इट विल इंक्रीज द स्केलेटल ग्रोथ कॉजिंग द चिल्ड्रन टू बिकम टॉलर, ओके, तो बच्चे जो हैं वो कम ही एज में बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज है, अगर हार्मोन्स की सिक्रीशन, थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम होती है तो ग्रोथ रुक जाएगी, और अगर इसकी सिक्रीशन ज्यादा होती है तो ग्रोथ बहुत मैक्सिमम होगी। नाउ फंक्शंस ऑफ द कैल्सिटोनिन, सो कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है कि ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको कम करना है एक्चुअली, ठीक है, एंड इट विल इंक्रीज द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द कैल्सिटोनिन। इट विल अकर इन द पैराफोलिकुलर सेल्स और सी सेल्स
lying in the interstitial fluid between the follicles of thyroid gland, ठीक है। तो इसके जो हार्मोन्स होते हैं इनकी सिंथेसिस भी थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स में हो रही है। And the cells constitute about 0.1% of the human thyroid gland, and the parathyroid gland is actually the ultimobranchial gland of the lower animals such as fish, amphibian, reptile and birds, ठीक है। तो ये इनके remnants के तौर पे वर्क करते हैं यानी बचे हुए। रेगुलेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। सो थायराइड हार्मोन सिक्रीशन की रेगुलेशन को हम एक दफा देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इट विल अटैक ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर रिलीज होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि अटैक करेगा थायराइड ग्लैंड पे, और जब ये थायराइड ग्लैंड पे अटैक करेगा तो उसकी सिक्रीशंस ज्यादा होंगी, और जब सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी यानी ग्रोथ मैक्सिमम हो जाएगी तो यही जो इसके सिक्रीशंस हैं ये पीछे जाके हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेंगी। So thyroid stimulating hormone or thyrotropin hormone from the anterior pituitary increases the thyroid secretions. Now, thyroid stimulating hormone specific effects on the thyroid gland are as follows. Thyroid stimulating hormone क्या करता है thyroid gland को, इसकी प्रोटियोलाइसिस करवा देगा थायरोग्लोबुलिन की, ताकि प्रोटियोलाइसिस हो और थायरोग्लोबुलिन में से हार्मोन्स बाहर रिलीज हों। इट विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द आयोडाइड पंप and increase the iodination of the tyrosine and increase the size and the secretory activity of the thyroid cells and increases the number of the thyroid cells. Now the parathyroid glands. So there is the physiological anatomy of the parathyroid glands. So there are 4 parathyroid glands that are located immediately behind the thyroid glands. तो 4 हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं जो थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे यानी इसके जो लेटरल 2 लोब्स हैं उसकी पोस्टीरियर साइड पे एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनको देखें तो इनमें 2 तरह के सेल्स हैं, चीफ सेल्स एंड ऑक्सीफिल सेल्स, ओके। चीफ सेल्स एज यू कैन सी हियर एंड द ऑक्सीफिल सेल्स। तो चीफ सेल्स जो हैं बेसिकली ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज द पैराथॉर्मोन हार्मोन। अब पैराथॉर्मोन हार्मोन के क्या फंक्शंस होते हैं? पैराथॉर्मोन हार्मोन का काम होता है जी कि ब्लड कैल्शियम लेवल को और फॉस्फेट लेवल को इंक्रीज करना है यानी इसकी रेगुलेशन करनी है, ठीक है। बाय रेगुलेटिंग द इंटरस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन, रीनल एक्सक्रीशन एंड एक्सचेंज बिटवीन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड द बोन ऑफ दीज आइंस। सो एक्सेस एक्टिविटी का क्या इफेक्ट होगा? एक्सेस एक्टिविटी का इफेक्ट होता है कि ओके, सो पैराथायरॉइड ग्लैंड की सिक्रीशंस अगर ज्यादा हो जाएं सो इसका क्या इफेक्ट होगा? एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड causes the rapid absorption of the calcium salts from the bones with resultant hypercalcemia in the extracellular fluid, ठीक है। जैसे हमने इसको देखा कि पैराथॉर्मोन हार्मोन का फंक्शन ये है कि ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको ज्यादा करना है, और वो ज्यादा कैसे करता है? बोन्स से रीअब्सॉर्प्शन करके, ठीक है। अब अगर ये ज्यादा रिलीज हो रहा है तो बोन से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी कैल्शियम की, यानी बोन्स में कैल्शियम कम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से फिर बोन्स की डिफरेंट जो है वो डिजीजेस हो सकती हैं लाइक द रिकेट्स, ठीक है। बोन्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स जो है वो डिफॉर्म हो जाएंगी। अगर हाइपोफंक्शनिंग हो रही है पैराथॉर्मोन हार्मोन की यानी कम रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बोन्स से कैल्शियम है वो रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसका इफेक्ट क्या हो जाता है कि टेटनी हो जाती है, ठीक है। ब्लड कैल्शियम लेवल अगर कम हो तो उससे मस्कुलर टेटनी हो जाएगी, ओके। नाउ we'll discuss about the pancreas. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी पेंक्रियास की लोकेशन, इट इज लोकेटेड जस्ट नियर टू द स्टमक, ओके। एज वी कैन सी हियर ये स्टमक के बिल्कुल करीब प्रेजेंट होता है। So the pancreas, in addition to the digestive functions, secretes the 2 important hormones, the insulin and the glucagon, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी हम देखते हैं पेंक्रियास की। पेंक्रियास में 2 मेजर टाइप्स के टिश्यूज हैं, द एसिनाई, ठीक है। एज यू कैन सी हियर द पेंक्रियाटिक एसिनाई, इनका काम होता है पेंक्रियाटिक जूस को बनाना, ठीक है।
सेकेंड वन है द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस, एज यू कैन सी हियर द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू का काम होता है हार्मोन्स को सीक्रेट करना, दैट इज इंसुलिन एंड द ग्लूकागोन। अब हमारे पास जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ये टिश्यू जो है वो फर्दर 3 टाइप्स के सेल्स से मिलकर बना होता है, द अल्फा बीटा एंड द डेल्टा सेल्स। सो नाउ द सिक्रीशंस ऑफ द सेल्स ऑफ पेंक्रियाज और द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा सेल्स ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन और अमाइलिन हार्मोन को। अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन को। डेल्टा सेल सिक्रीट करते हैं सोमेटोस्टैटिन को, ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। देन इंसुलिन इनहिबिट करती है ग्लूकागोन की सिक्रीशन को, ओके, एंड अमाइलिन इनहिबिट्स द इंसुलिन सिक्रीशन। सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ बोथ द ग्लूकागोन एंड द इंसुलिन। Okay, जी, the glucose regulation. Glucose level is controlled by the insulin and the glucagon. तो पहले जो insulin है, it will decrease the blood glucose level, and glucagon will increase the blood glucose level. So you can see here, सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल अगर इंक्रीज हो तो द बीटा सेल्स एंड पैंक्रियाज के दे आर गोइंग टू रिलीज द इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होने की। तो ब्लड में कम कैसे करेगी इंसुलिन, ब्लड से इसको रीअब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देगी सेल्स में, ठीक है। और जब सेल्स में जाना शुरू हो जाएगी ग्लूकोज, तो ब्लड में अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। और जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, देन नेगेटिव फीडबैक होगा, यानी इंसुलिन का जो रिलीज है इट विल बी इनहिबिटेड बाय द पैंक्रियास। सो अगेन यू कैन सी हियर, ये हमारे पास कंप्लीट इसकी रेगुलेशन है। अगर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो तो जो बीटा सेल्स है इंसुलिन के, दे आर गोइंग टू रिलीज द इंसुलिन। इंसुलिन अब अटैक करेगी मसल सेल्स पे और लिवर सेल्स पे। मसल सेल्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट अपटेकिंग द ग्लूकोज, ठीक है, यानी वो एनर्जी के सोर्स के तौर पे ग्लूकोज को अपटेक करना शुरू कर देंगे और उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे ग्लाइकोजन में। सेम काम जो है वो लिवर में भी होगा, लिवर जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा ग्लाइकोजन में, और अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा। अब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो पैंक्रियाज में जो अल्फा सेल्स हैं, दे आर गोइंग टू रिलीज द ग्लूकागोन, ठीक है, और ग्लूकागोन लिवर पे अटैक करेगा ताकि लिवर में जो ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो और अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस, द 1 एंड द 2। अब डायबिटीज मेलाइटिस 1 जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसमें क्या है, बीटा सेल्स जो होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द एंटीबॉडीज, ठीक है। जो टाइप 2 है, इसमें जो दी सेल्स हैं, दीज आर गोइंग टू बिकम द इंसुलिन रेजिस्टेंट सेल्स एंड ग्लूकोज डज नॉट एंटर द सेल्स एज रेडिली, ओके। ओके जी, सो द नेक्स्ट वन इज द एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है, इट इज दी 2 एड्रिनल ग्लैंड्स लाई एट द सुपीरियर पोल्स ऑफ द 2 किडनीज, ठीक है। हमारे पास 2 एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जो कि 2 किडनीज की टॉप पे यानी उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। सो ईच ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ द 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, द एड्रिनल मेडुला एंड द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। जो एड्रिनल मेडुला है, it is located inside the adrenal cortex, and the adrenal medulla is going to release the hormones, the epinephrine and the norepinephrine। दोनों हार्मोन्स जो हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो इमरजेंसी की सिचुएशन में एक्टिवेट होता है, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है, आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है उनको हम कहते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, ओके। So there are 2 major types of the corticosteroid hormones, the adrenocortical hormones, that are the mineralocorticoids and the glucocorticoids. Okay, so in addition to these, small amounts of the sex hormones are secreted, especially androgenic hormones, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है एड्रिनल मेडुला द इनर वन, और एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स द आउटर वन, ठीक है। मेडुला में जो है वो स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक प्रॉपर जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, और इसमें फर्दर 2 तरह के हार्मोन्स हैं, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स
and the second one are the androgenic hormones. Okay, तो अब हम देखते हैं जी, जो हमारे पास एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनरेलो एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, they are going to affect the electrolytes of the extracellular fluids, especially the sodium and the potassium ions, यानी इनकी जो कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं बॉडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसकी 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं। एक है जोना ग्लोमेरुलोसा, ओके, एज यू कैन सी हियर द आउटर मोस्ट, ठीक है। फिर इसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, दिस वन इज द एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एंड देन इज द जोना फेस्क्यूलेटा। So you can see here the middle one is the zona fasciculata, and it's going to release the hormones, the glucocorticoids, the cortisol, corticosterone, and the adrenal androgens and the estrogens. Then the zona reticularis, the inner one, ठीक है। तो जो zona reticularis है, it's going to release the androgenic dihydro uh, epiandrosterone and androstenone dione, okay. So you can see here the adrenal gland, it's having the 2 parts, the inner one medulla and the outer one cortex. तो जो cortex है उसके 3 parts हैं, 3 layers हैं, zona glomerulosa and zona fasciculata and zona reticularis, ठीक है। And then inner one is adrenal medulla. तो medulla से जो है वो stress hormones release होंगे, epinephrine और norepinephrine। जो हमारे पास 3 layers हैं, glomerulosa, it's going to release the hormones mineralocorticoids, okay, that is the aldosterone. And then zona fasciculata, it's going to release the glucocorticoids, and these glucocorticoids are the cortisol, corticosterone and cortisone. And then the zona reticularis, it's going to release the androgenic hormones, so this one is the dihydroepiandrosterone, okay। तो ये हमारे पास 3 layers हैं एडिनल कॉर्टेक्स की, जो स्पेसिफिक हार्मोन्स, ये नेचर ऑफ हार्मोन है, और ये हमारे पास फर्दर एग्जांपल्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेलुलर मैकेनिज्म of aldosterone action. तो aldosterone जो है, it's going to increase the uptake of the ions, specifically the sodium ions. It will attack on the upper loop of Henle in nephron, and it will increase the absorption of the sodium ions. एडिनल मेडुला को अगर हम देखें, तो एडिनल मेडुला में जो है वो क्रोमैफिन सेल्स हैं, so that are named for the granules within the cells that darken after exposure to the chromium salt, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्रोमियम सॉल्ट से एक्सपोजर पे ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये डार्कर हो जाते हैं, इसको हम क्रोमैफिन सेल्स कहते हैं, ठीक है। क्रोमैफिन सेल्स सिक्रीट द कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन एंड डोपामाइन हार्मोन्स। पहले हम कैटेकोलामाइंस को देखेंगे। Catecholamines are involved in the fight or flight response during the sympathetic nervous system, and they increase the blood pressure and increase the serum glucose. Physiological effects of the medullary hormones. So they increase the rate and the force of contraction of the heart muscles. यानी एपिनेफ्रीन का, मेडुलरी हार्मोन्स में से एपिनेफ्रीन का काम होता है कि contraction of the heart muscles उसको increase करना, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये काम है हमारे पास नोर एपिनेफ्रीन का, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का काम है हार्ट मसल्स को एपिनेफ्रीन का, और नोर एपिनेफ्रीन का फंक्शन होता है कंस्ट्रिक्ट करना ब्लड वेसल्स को। एंड डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करना, एंड स्टिमुलेशन ऑफ द लाइपोलाइसिस इन फैट सेल्स, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल एंड इनहिबिशन ऑफ द नॉन एसेंशियल प्रोसेसेस, यानी कि डाइजेशन। तो इन सब प्रोसेसेस को इनहिबिट करना। Now we're going to discuss about the ovary, testis, placental hormones. So first of all, the male reproductive endocrinology. So the most important functions हैं जो कि endocrine system of the male control करता है, वो है spermatogenesis, then performance of the male sexual act, and the regulation of the male reproductive functions. So first of all, hormonal factors that stimulate the spermatogenesis. One by one हम hormones को discuss करेंगे. So there are several hormones that are involved in the process of spermatogenesis. First of all है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, that is the most important hormone, जो कि मेल की टेस्टिस में located Leydig cells release कर रहे होते हैं. As you can see here, Leydig cells. These Leydig cells are going to release the testosterone, and this testosterone will increase the growth and division of the testicular germinal cells, ताकि इन germinal cells को divide किया जा सके, convert किया जा सके sperms में, ठीक है।
देन है जी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, दैट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द लेडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस ऑफ द मेल्स टू प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन। देन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इट इज रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये अटैक करेगा और स्टर्टोलाइज सेल्स पे जो कि मेल की टेस्टिस में प्रेजेंट हैं एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स, ओके। Now, the growth hormone. So, growth hormone is necessary for controlling the metabolic functions of the testes. So, the testosterone is the most important hormone that will be released by the Leydig cells of the male testes for the production of the sperms. Now, physiological functions of the testosterone. तो testosterone जो है it will cause the descent of testes, ठीक है, यानी testes का descent down होना, scrotum में आना during the development, ये function है testosterone का. Then primary and secondary sexual characteristics को control करना, like the penis, scrotum and testes, इनकी enlargement करना, ठीक है, and causing the secondary sexual characteristics of the male to develop. Testosterone causes the growth of the hair over the pubis, on the face and on the chest, and it decreases the growth of the hair on the top of the head. And testosterone secreted by the testes causes the enlargement of the larynx. It will affect the voice. It will affect the voice of the males, just like the cracking voice, okay. So, testosterone increases the thickness of the skin and can contribute to the development of the acne. It will increase the protein formation and the muscle development, and it will increase the basal metabolic rate and increases the red blood cells production. Okay, तो ये तमाम जो है वो functions हैं. Primary and secondary sexual characteristics of male उनको develop कराना, specific body parts पे hair की growth करवाना, और जो हमारे पास टॉप ऑफ द हेड वाला एरिया है वहाँ पे हेयर की ग्रोथ को डिक्रीज करना, स्किन को थिक करना, प्रोटीन की फॉर्मेशन, ताकि मसल्स हैं वो मैक्सिमम डेवलप हो सके मेल्स में, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करना. एज वी नो दैट मेल्स में रेड ब्लड सेल्स जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है देन द फीमेल्स. Now, female endocrinology functions. So, female reproductive functions can be divided into the two major phases: the preparation of the female body for the conception and the period of the pregnancy. ठीक है, ये दो specific अब कहने phases हैं जहाँ पे maximum endocrinology के functions जो है वो हो रहे होते हैं. सो फीमेल का जो हार्मोनल सिस्टम है इसमें फॉलोइंग हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं. फर्स्ट वन इज द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से. इसमें दो तरह के हार्मोन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है फीमेल की जो ओवरी है उस पर अटैक करना और वहाँ पे जो फॉलिकल सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट करवाना, यानी एग्स की प्रोडक्शन करवाना. एंड देन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो अटैक करेगा ओवरी के सेल्स पे ताकि ओव्यूलेशन हो सके, यानी रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी. और इन्हीं दोनों हार्मोन्स के स्टिमुलस के रिजल्ट में ही जो ओवरी है वो रिलीज कर रही होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है. नाउ फंक्शंस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स. तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका फंक्शन होता है प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ करवाना स्पेसिफिक सेल्स की इन द बॉडी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन होता है यूट्रस को प्रिपेयर करना फॉर द कंसेप्शन, यानी प्रेगनेंसी के लिए उसको प्रिपेयर करना, एंड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, यानी मिल्क की प्रोडक्शन और मिल्क की इजेक्शन के लिए जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनकी डेवलपमेंट करवाना. देन एज द एग माइग्रेट्स डाउन द फेलोपियन ट्यूब, तो प्रोजेस्टेरोन जो है इट इज रिलीज्ड, ओके. एंड it is secreted by a temporary gland formed within the ovary after ovulation called the corpus luteum. यानी ओवरी से जब एग जो है वो रिलीज हो जाएगा तो जो फॉलिकल है वो डेवलप हो जाता है एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है. कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा प्रोजेस्टेरोन, और जब तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू रिलीज और प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है. So progesterone prepares the body for the pregnancy by causing the uterine lining to thicken, ठीक है,
एंड इफ द वुमेन इज नॉट प्रेग्नेंट देन द कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर्स, यानी अगर प्रेगनेंसी ना हो तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिसअपियर हो जाता है. So if a woman is pregnant, the pregnancy will trigger the high levels of the estrogen and progesterone, which prevent the further eggs from maturing. Okay. Progesterone is secreted to prevent the uterine contractions that may disturb growing the embryo. So progesterone का function ये होता है कि uterine contractions को prevent करना ताकि जो embryo है वो disturb ना हो और उसकी growth further होती रहे. The hormone also prepares the breast for the lactation. इस हार्मोन का ये भी फंक्शन होता है कि ब्रेस्ट को प्रिपेयर करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द milk. So increased estrogen level near the end of the pregnancy alert the pituitary gland to release the oxytocin which causes the uterine contractions. ठीक है, यानी जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है नियर द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, सो इसकी वजह से जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इट विल कॉज द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि यूट्रस की वॉल पे अटैक करके उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को प्रमोट करता है फॉर द डिलीवरी एंड फॉर द बर्थ प्रोसेस. ओके, तो ये हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एस्ट्रोजन के और प्रोजेस्टेरोन के. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो फंक्शन है ओवरऑल वो ये है कि यूट्रस की वॉल पे अटैक करना, वहाँ पे वास्कुलराइजेशन यानी ब्लड वेसल्स की सिंथेसिस करवाना सो दैट जो यूट्रस है वो थिक हो सके फॉर द कंसेप्शन. ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरोन है इसकी सिक्रीशन होती रहेगी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फॉर मेंटेनिंग. नाउ द प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है दैट इज द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन. ठीक है, एज वेल एज द प्रोजेस्टेरोन भी प्लेसेंटा से रिलीज होगा, एस्ट्रोजन एंड द ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. तो दीज आर द हार्मोन्स दैट विल बी रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा. एंड इन तमाम हार्मोन्स का भी जो फंक्शन है. Okay, so now we're going to discuss about the kidney, heart, and the pineal gland hormones. So first of all, the kidney is going to release the renin hormone. तो renin hormone के हम functions को देखते हैं. The blood pressure regulation is the main function of the renin hormone, and it works together with the angiotensin and aldosterone to maintain the level of sodium and potassium in your body. ठीक है, तो इसका फंक्शन होता है एंजियोटेंसिन एंड द एल्डोस्टेरोन, इन दोनों के साथ वर्क करना ताकि बॉडी में सोडियम और पोटाशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहे. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं इसके. रेनिन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में. सो एंजियोटेंसिनोजिन क्या है? दिस वन इज द प्रिकर्सर ऑफ एंजियोटेंसिन दैट प्रोड्यूस्ड बाय योर लिवर. तो हमारा लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिनोजिन को और इसको रेनिन एंजाइम रेनिन हार्मोन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में. ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 1 हार्मोन इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाता है यानी इनको नैरो करता है. नाउ एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2. ठीक है, देन एंजियोटेंसिन 2 नैरोज योर ब्लड वेसल्स एंड स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ द एल्डोस्टेरोन. ये ब्लड वेसल्स को नैरो करेगा ताकि एल्डोस्टेरोन रिलीज हो. अब एल्डोस्टेरोन जो है इट विल हेल्प योर किडनीज टू रिटेन द वाटर एंड द सॉल्ट एंड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इन योर बॉडी. दिस इंक्रीजेज योर ब्लड प्रेशर. ठीक है, इस ये करता क्या है एल्डोस्टेरोन, ये हमारी जो किडनीज हैं उनके उनके नेफ्रॉन्स पे अटैक करता है. असेंडिंग लूप जो है हैंडले का उसके ऊपर अटैक करेगा, वहां से सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करवा के ब्लड में बेचना शुरू करेगा. जब ब्लड में सॉल्ट की अमाउंट मैक्सिमम हो जाएगी देन उसको जो है वो डाइल्यूट करने के लिए वहां पे मैक्सिमम वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा ये. और जब वाटर की मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होगी देन वी नो कि ब्लड का जो प्रेशर है इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. नाउ एरिथ्रोपोइटिन ये भी हार्मोन किडनीज से रिलीज हो रहा है. एंड एरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द किडनी एंड इट एक्ट्स ऑन द रेड ब्लड सेल्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन. यानी इसका काम होता है कि रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को प्रमोट करना है. ठीक है, देन हार्ट से एक हार्मोन रिलीज होगा दैट इज द एट्रियल नेफ्रोयूरेटिक पेप्टाइड. एंड इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? इट विल रेगुलेट द सॉल्ट वाटर बैलेंस एंड द ब्लड प्रेशर. ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को और सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करेगा बाय प्रमोटिंग द रीनल सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन एंड स्टिमुलेटिंग द वेजोडाइलेशन. यानी जो हमारा रीनल सिस्टम है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वहां से वाटर और जो सोडियम की एक्सक्रीशन हो रही है उसको प्रमोट करना है, यानी सोडियम और वाटर को रिलीज करवाना है और वेजो डायलेशन करवानी है, ब्लड वेसल्स की डायलेशन करवानी है. ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर.
नाउ द मेलाटोनिन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पीनियल ग्लैंड, ये हमारे जो है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स विद द टाइमिंग ऑफ योर सर्कैडियन रिदम्स, 24-hour इंटरनल क्लॉक, एंड विद द स्लीप it's being exposed to light at night and can block the melatonin production. Research suggests that melatonin plays other important roles in the body beyond the sleep. तो इसका फंक्शन होता है जो स्लीप का हमारा 24 आवर क्लॉक है उसको मेंटेन करना, ठीक है। और लाइट से अगर एक्सपोजर हो जाए इस हार्मोन का, so light can block the production of the melatonin हार्मोन, ओके। सो ये स्लीपिंग को जो है वो फर्दर डिस्टर्ब करेगा। So it was our overall topic related to the endocrinology or the endocrine hormone. So this is very much important topic. इसको students और candidates जो हैं वो different exams के लिए prepare कर लेते हैं। So now we'll meet with the next video inshallah. Until then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।